Bismillahirrahmanirrahim. Acha ji, we will continue over the previous topic, present and future value of cash. If you have any problem till now, anybody can ask the question, please. Before 4 p.m. today is the deadline of assignment number 2, which given by me yesterday, right? Okay, sir. Okay, we will going to continue internal rate of return, same as like present value and future value. Yesterday I discussed about a simple example on Excel sheet, which is the feasible interest rate for us. How we can decide which one is the good interest rate. Obviously, the highest percentage interest rate if the bank is giving to us, which is very much feasible for us. Everybody should switch off your mics, please. If you have question, you can on your mic and ask the question. The most feasible interest rate, the highest one. Right now in Pakistan, 7% interest rate is given to the everybody or every customer if someone invest into the bank. I gave 4 to 5 different interest rate examples. The 5% interest rate will give you 15 after 15 year a double price. If the interest rate is 7 percentage, almost 11 years, after 11 years you will get double price. Similarly, we also discussed about the 13.25 percentage, which was June 19, almost 6 years need to get the double price. I also told you in the 1992 when the Nawaz Sharif came back, please switch off your mobile mic, please. Otherwise, I will not allow to continue this Zoom meeting. Okay. In 1992, when Nawaz Sharif Prime Minister as a Prime Minister came in as a Prime Minister in Pakistan, after 1 year of his government, 1993, he announced if anybody, because we need a money, at that time Nawaz Sharif government need a money. He told to the people of Pakistan, if anybody have the money, please deposit in the different banks. We will give you double price within the 4 year. So obviously उसका interest rate around 14-15% होगा. तो which one business is suitable for us? If anybody started a business, suppose a 4 different persons starts a business on the same day. After 1 year, one A person said, my interest rate, my earning rate of return is 5%. The second person says 7%. The third person said 9%.
The fourth person said 13% and the fifth person said 15%. इसका मतलब जो फिफ्थ पर्सन वाला आदमी है, ही इज ए गुड बिजनेसमैन, या उसने बड़े अच्छे स्किल्स के साथ अच्छा प्रॉफिट अर्न किया आफ्टर 1 ईयर। चारों बंदों ने या पांचों बंदों ने बिजनेस स्टार्ट किया, हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बिजनेस को रन करना शुरू किया। आफ्टर 1 ईयर जो उनकी अर्निंग थी वो डिफरेंट आई थी। जारी बात है, जब चारों पांचों बिजनेस मुख्तलिफ किस्म के सिनारियों में काम कर रहे हैं और बिजनेस की टाइप एक ही है, तो ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे ही अर्निंग कर रहे हो। तो जो अच्छा बिजनेसमैन हो उसका इंटरेस्ट रेट 1 साल बाद मैक्सिमम आएगा। इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सबको। एक ही टाइप के बिजनेस पांच मुख्तलिफ लोग इस शुरू करें तो ज़रूरी नहीं है कि पांचों के पांचों 1 साल बाद एक जैसी अर्निंग ले रहे हो। कुछ मिलते जुलते भी हो सकते हैं बट मुख्तलिफ भी होंगे। बट who much got a maximum earning, it means he is running a business in a very good manner and he is getting money, highest money with all of the other businessmen, जितने भी उनके साथ बिजनेसमैन अटैच हैं। तो अब सिंपल जबान में पांच बंदे, पांच क्या, टक शॉप पाकिस्तान में आपने देखा होगा, लाखों लोग बिस्कुट बेच रहे हैं, लाखों लोग ब्रेड बेच रहे हैं, ठीक है जी, लाखों लोग चीनी बेच रहे हैं। तो किसका बिजनेस सबसे अच्छा चलता है? अगर क्लास में 40 बच्चे हैं और सारे 40 बच्चे के 40 बच्चे अपने आपस में अपने अपने इलाकों में बिजनेस करना शुरू करें, तो 1 साल बाद सबकी अर्निंग सेम नहीं होगी। कुछ बच्चे बहुत अच्छा बिजनेस चलाएंगे, कुछ बच्चे डाउन जाएंगे, कुछ टॉप पर होंगे। टॉप का मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट रेट 1 साल बाद उन्होंने जितनी भी मेहनत की, किसी की 13% आई, किसी की 14 आई, किसी की 5 आई, किसी की 7 आई। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि अर्निंग जो डिफरेंट किस्म की है वो बाद में डिफरेंट किस्म के साथ, डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ आएगी। तो एक जैसे लोग, सारे एक किस्म के लोग एक ही वक्त में शुरू किया हुआ बिजनेस एक जैसी अर्निंग नहीं ले सकते। ये अल्लाह का कानून समझ लें, या अल्लाह का कानून ये है कि जी मुख्तलिफ किस्म के दिमाग काम कर रहे हैं। मैं एक ही किस्म का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और बाकी पांच बच्चों ने भी एक किस्म का बिजनेस शुरू किया है। तो एवरीबॉडी शुड नॉट गेट अ सेम अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। कुछ लोग कम कमाएंगे, कुछ दरमियाना कमाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट आफ्टर 1 ईयर अगर हम हर बिजनेस का कैलकुलेट करना शुरू करें तो किसी का 5%, किसी का 6%, किसी का 17%, किसी का 20% भी आ जाएगा। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा बिजनेस दूसरों के कंपैरिजन अच्छा चल रहा है। इस चीज को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। नहीं कहेंगे इंटरेस्ट रेट, तो वो होगा कि मैंने इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद मुझे इतनी अर्निंग आई। अब अगर सब लोग एक ही अमाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया एक 10 लाख रुपए से। अ मशीन वाज ए प्राइस, मैंने एक मशीन खरीदी जो कि $10 लाख की थी। दैट जनरेट्स 150,000 पर ईयर। 10 लाख की मशीन खरीद के 1.5 लाख रुपए 10 साल में मैंने कमाए। ठीक, अब आप इसका रेट ऑफ इंटरनल वो रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। अब उसको कैसे निकालना है? अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली वही है जो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट में आपने जैसे आई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, 5%, 7% लगा के आपने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि मैंने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, हर साल मुझे 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। हर साल
1.5 लाख रुपए मुझे मिल रहा है और 10 साल तक मुझे 1.5 लाख रुपए ही मिलता है। असल में होता भी ऐसे ही है। हर कोई बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए लगाता है और कहता है जी मैंने 10 साल तक मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ प्राइस कमाई। जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो 1 साल की काउंट होगी। 1 महीने की काउंट करेंगे तो 1 साल की अमाउंट को 12 पर डिवाइड कर देंगे तो वो उस माह की निकल आएगी। लेकिन फाइनेंस में जब आप कोई भी इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो आपको 1 साल की वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे मैंने प्रोडक्शन में एक न्यूमेरिकल क्लास में करवाया था कि आपने जब भी टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो वो पूरे साल की निकालनी है, 365 दिनों की। और अगर आपको 6 माह की दी हुई है या 2 माह की दी हुई है तो उसको 1 साल में कन्वर्ट करें। सिमिलरली जब आप इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू, फाइनल वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो आपको एनुअली पूरे 1 साल का डाटा इकट्ठा करके फिर उस बेस पर इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि मैंने एक पैसा बिजनेस पे लगाया, 1 साल बाद उसका क्या रिटर्न मिला, 1 साल बाद मेरा क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था उस बिजनेस का, मतलब क्या इंटरेस्ट था। अब उसको जब बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसको इंटरेस्ट नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि कहते हैं जी इंटरेस्ट जो है वो हराम है उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमने फिजिकली खुद बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने बैंक में पैसे जमा नहीं कराए। अगर आप पैसे बैंक में जमा कराएंगे वही बात इंटरेस्ट की होगी, और अगर वही पैसों से आप खुद बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस इंटरेस्ट को ख़त्म करके हम दूसरी ज़बान में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। तो मैंने एक तरफ 10 लाख रुपए का बिजनेस शुरू किया खुद, तो उसका 1 साल बाद क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं कहेंगे उसको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। और अगर वही पैसा बैंक में जमा करवाएंगे 10 लाख, तो मैं काम खुद नहीं कर रहा, बिजनेस खुद नहीं चला रहा, तो इट मीन्स उसको हम इंटरेस्ट रेट कहेंगे। तो बात एक ही है कि अगर इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस बाय योर सेल्फ वी विल से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, but you have no capacity to start the business, you should just deposit in the money into the bank, then we will say interest rate। तो अब कोई बैंक आपको 5% देगा, कोई बैंक आपको 6% देगा। जिसका बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है आप कहेंगे जी मैंने उधर पैसे जमा करवाने। इसी तरह जब बिजनेस 5-6 लोग इकट्ठे स्टार्ट करते हैं और एक ही किस्म का, तो हम कहते हैं कि जिस बिजनेसमैन का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वो बंदा बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है। तो जिस कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा हो तो उसका मतलब ही इज ए गुड बिजनेसमैन, ही इज रनिंग हिज बिजनेस इन बेस्ट स्किल्स। जो भी उसके पास अच्छे मैनेजर हैं, अच्छे टेक्निकल इंजीनियर हैं, अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इसका मतलब वो बहुत अच्छी कैपेसिटी से चल रहा है। अब सिंपल एक सवाल है कि आप कोई भी बिजनेस चलाना चाहते हैं या आप कोई भी पैसे बैंक में जमा करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर वैल्यू और फाइनल प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी इजीली विद डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। तो जब आप बिजनेस खुद चलाएंगे, किसी ने चिंची ले ली, किसी ने रिक्शा चला लिया, किसी ने टैक्सी चला ली, किसी ने बस चला ली, किसी ने वैन चला लिया, किसी ने मजदा चला लिया, ठीक है जी। लॉट ऑफ व्हीकल्स आर अवेलेबल एज ए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। तो विच वन इज द गुड बिजनेसमैन? सिंपली, सर 8 लाख लगा के मजदा चलाएंगे। नहीं बेटा मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको चैलेंज ना करें, आप ना चलाएं। अगर चेक करने का तरीका क्या होता है बस हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, विच वन इज द गुड बिजनेस। मैंने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस का एग्जांपल इसलिए दी है कि कोई भी बंदा जिस किस्म के काम को भी चाहे स्टार्ट कर सकता है, बट विच वन इज द गुड बिजनेसमैन, आप उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे कि जी आपके पिछले 5 साल का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं तो आप फिर उसको कहेंगे जी आपको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, बिजनेस खुद नहीं कर रहे तो आप उससे इंटरनल इंटरेस्ट पूछेंगे। बिजनेस खुद चला रहे हैं, आप उससे पूछेंगे पिछले 5 साल का मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताओ।
मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। देखें, इंजीनियर जब बिजनेस स्टार्ट करता है, या इंजीनियर कोई भी बैंक में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस या अपना यानी एचओडी लगता है, किसी इंडस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगता है, जनरल मैनेजर लगता है, किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड लगता है, तो हु इज द गुड ऑनर, ऑन कौन करेगा जी मैं बहुत अच्छा चला रहा हूं, तो आप अपनी डिपार्टमेंट का, अपने फाइनेंशियल का, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। जिसका हाईएस्ट परसेंटेज में आएगा तो हम उसको कहेंगे कि वो गुड बिजनेसमैन है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें कि मैंने 10 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई से मुराद, कोई एग्जांपल अगर मैं दूं कि जी चले ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर लो, मैं ये नहीं कहता कि जी आप कोई भी शुरू कर लें, आप टक शॉप खोल लें, आप गेयर बनाने वाली कंपनी बना लें, आप बेल्ट प्रोड्यूस करने वाली कोई मशीन बना लें, जूता बनाने वाली कोई मशीन बना लें, बट उसकी प्राइस 10 लाख रुपए है उस मशीन की। ठीक है जी। लैपटॉप इटसेल्फ एक मशीन है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो कहते हैं जी मैंने एक लैपटॉप की मशीन ली और 10 लाख की मशीन वो खरीदी और मैंने ये 1.5 लाख रुपया या हर साल अर्निंग की। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व आपने खुद करना है। अगर आपको अलजबरा बहुत अच्छा आता है तो उसकी आई की वैल्यू 8.14 निकलती है। यानी एक ऐसी मशीन जो 10 लाख से खरीदी गई और हर साल के एंड में मैंने जब कैलकुलेट किया वो मुझे 1.5 लाख रुपए दे रही थी, 10 साल तक मुझे वो 1.5 लाख रुपए देती रही। तो उसको जब आई फाइंड आउट करेंगे आप तो 8.14 निकलेगा। इट मीन्स कि मैंने ये बिजनेस में 8.14 अर्निंग की। यही पैसा बैंक में जमा करवाते तो आई की वैल्यू अगर 8.14 आती तो हम उसको इंटरेस्ट कहते। क्यों? क्योंकि वो बैंक में पैसे जमा करवाए थे, बैंक बिजनेस कर रहा था, आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे थे। तो इंटरेस्ट उस लिए, उस काम के लिए यूज होता है जब आप काम खुद ना कर रहे हो और बैंक को पैसे दे दें। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उस वक्त आता है जब आप बिजनेस में खुद इन्वॉल्व हो और आप कहते हैं जी नहीं ये अब इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं खुद बिजनेस चला रहा हूं। वैल्यू उधर भी आई है, वैल्यू इधर भी आई है। अब इस बिजनेस में ये मशीन आपको 8.14 की परसेंटेज के साथ एनुअली प्रॉफिट या जो भी अर्निंग दे रही है। ऊपर हम कभी 7% लेते थे और फ्यूचर वैल्यू और इंटरनल वैल्यू निकालते थे कि जी बैंक आपको कितने पैसे देगा। मैं अगर लाख रुपए देता हूँ, मेरी ये प्रेजेंट वैल्यू है, बैंक 1 साल बाद मुझे कितने पैसे देगा। आप कहते हैं जी फ्यूचर वैल्यू निकाल लें। वो फिक्स इंटरनल रेट होता है जो पाकिस्तान में इस वक्त 7% चल रहा है। अगर कोरोना के हालात थोड़े से ठीक हो जाएं तो यही 10% 11% पर चला जाएगा। तो मोस्टली लोग जो ज़्यादातर बिजनेस आजकल कर रहे हैं वो अब बैंकों में पैसे जमा नहीं करा रहे क्योंकि रेट बहुत कम है। तो अब जो भी बिजनेस एक दूसरे के साथ चलाएंगे, जो भी बिजनेस एक दूसरे के साथ आप खुद चलाएंगे वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करेगा। तो जब बिजनेसमैन आपस में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हो तो इट मीन्स वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं कि एनुअली हम कितना अर्न कर रहे हैं। विद दिस given example, the earning is 8.14 percentage. If I started a business with a 10 lakh price of the machine and it gives 1.5 lakh rupees on annually for the 10 years, so I will earn 8.14 percentage as a internal rate of return. आई इधर भी है, बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वही आई आपका इंटरेस्ट रेट बैंक में है और अगर आप खुद चलाएंगे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन को असाइनमेंट नंबर 2 की फॉर्म में सॉल्व करना चाहें, जो कि मैं आपको आज की असाइनमेंट नंबर 2 दे रहा हूँ, दोनों असाइनमेंटें कोशिश करें आज शाम 6 से 8 बजे तक मुझे mushtaq.खोखर में भेज दें सॉल्व करके। दिस इज माई email, which just write on my the word Microsoft Word. I started a business, ये नोट कर लें सब, स्क्रीन सेव कर लें बेशक। I started a business with initial
investment ₹2 lakh. If it gives annually as per following data. अब गौर करना है इस सवाल को। आफ्टर 1 year बोर्ड के ऊपर बड़ा अच्छा फिजिकल क्लास होनी थी। आफ्टर 1 year आई गॉट ₹10,000। आफ्टर 2 year आई गॉट, जरा मेहनत की मैंने तो मैंने ₹11,000 कमा लिए। आफ्टर 3 year कोरोना आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, मेरा बिजनेस बंद हो गया, 8,000 पर चला गया। ठीक है, ऐसे ही होता है, दुनिया में भी ऐसे ही होता है, हम इसको ऊपर नीचे लिखते हैं। आफ्टर 4 year कोरोना थोड़ा सा कम हुआ, मैंने पैसे ज्यादा कमा लिए। आफ्टर 5 year अच्छे जो बिजनेसमैन हैं, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी रखते हैं और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रखते हैं सॉरी, तो वो जब 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे होते हैं तो वो ऐसे ही निकालते हैं। कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया, मैंने दोबारा नए सिरे से बहुत मेहनत की, मैंने ₹12,000 कमा लिए। बस ओके जी। आप 8 दफा लिखेंगे 2 लाख 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। आगे लिखेंगे प्लस 2 लाख ओवर 1 प्लस आई, सॉरी 10,000 ओवर, क्योंकि 1 साल बाद आपकी अर्निंग कितनी थी, 1 प्लस आई 1 प्लस 11,000 और 1 प्लस आई 2 दूसरे साल का। तीसरे साल 8,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई 3 प्लस 9,000 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर 4 प्लस 12,000 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर 5। इसी तरह कंटिन्यू 8 साल का लिखना है और आखिर में आपने आई निकालना है। अब सवाल ये है कि अगर तो परसेंटेज बहुत कम डाउन जा रही है तो शुड आई कंटिन्यू दिस बिजनेस और शुड आई कंटिन्यू दिस बिजनेस और नॉट। सर ये आपने मेल ठीक नहीं की है? ये ले, अब ठीक है। यस। अगर तो इंटरेस्ट, इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is greater than 5%, will continue the business।
अगर तो आपका आंसर 5% से ज्यादा आता है तो फिर तो आप कहेंगे जी ठीक है 5% से ज्यादा है, बैंक आपको 7% दे रहा है, तो आप कंटिन्यू करें। और अगर आपका बहुत लो आ रहा है, 4% आ रहा है, 3% आ रहा है बिजनेस, तो उस बिजनेस ऑनर को ये कहा जाता है कि आपका कोई फायदा नहीं, यही पैसा आप सारा बंद बुंद करके चीजें सेल करके आप बैंक में पैसे दे दें, वो आपको 7% दे देगा। तो इसलिए जो लोग भी बिजनेस करते हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बंदे बिठाए होते हैं, वो ईयरली बेसिस पर हर साल कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं कि जी इंटरनल परसेंट इस वक्त 8%, 9%, 10%, 12%, 15%, 20%। ट्रांसपोर्टेशन जिसकी तुम बात कर रहे थे, उसमें इस वक्त दुनिया में हवाई जहाज या दूसरे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका 29, 30, 35% तक भी चला जाता है। यानी 100 रुपये लगा के बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन में तो आप 35% कमा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ ये जो अगर सही कैलकुलेट किया जाए तो ये जो डाइवो वाले हैं, अगर बसें फुल जाए ना, फुल, चलो आजकल तो उनके पास सीटें नहीं होती या पैसेंजर नहीं है, तो अगर हर बस डाइवो की या फैसल मूवर्स की फुल जाए ना, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में इतना फायदा है कि अगर आप 5 साल तक बिजनेस चलाएं तो ये 100% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रही होती है। 100% का मतलब ये है कि 1 साल में जितना पैसा लगाया डबल हो गया। बात समझ आई? तो जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को सही चलाना जानते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन में ही घुसे हुए हैं, वो और कोई काम नहीं करते, क्योंकि इसमें इतना मुनाफा है कि 1 साल में ही पैसा लाख रुपए लगाया, अगले 1 साल बाद ही लाख रुपए ले लिया। तो यानी आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आई है वो 100% निकल रहा होता है। तो होता ये है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे 7% से ज्यादा कमा रहे होते हैं, क्योंकि अगर 7% से नीचे हो तो उस बंदे को कहा जाता है कि ये पागल तरीन शख्स है कि इतनी मेहनत भी कर रहा है और 7% अर्निंग कमा रहा है, इसको चाहिए कि बिजनेस बंद करे और बैंक को पैसे दे दे। अब बैंक भाई आपको 7% दे रहा है बगैर किसी काम के, आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उठाएं और बैंक को जमा करवा दें, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको 7% या 7% से ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोरोना, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में रहम फरमाए, दुनिया में रहम फरमाए, बिजनेस सारे फ्लॉप हो गए हैं, जो कि 13-11% से होता हुआ, मैंने आपको पिछली हिस्ट्री कल गूगल में दिखाई थी, जो 13% से शुरू हुई है, 12, 11, 10, 9, 8, आजकल 7% पर आके खड़ी हो गई है। तो मोस्टली लोगों ने, जो लोग बिजनेस कर रहे थे और 8%, 9% कमा रहे थे, उन लोगों ने भी कोशिश ये की है कि बिजनेस बंद करके बैंकों में पैसे जमा करवा दें, क्योंकि कोरोना की वजह से वही रेशो 5%, 4% पर चली गई है। तो वो कहते हैं चलो बैंक तो 7% हमें देगा। तो बहरहाल जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और जब आप खुद काम करते हैं उसी आई को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं। दो मुख्तलिफ जबानें हैं, चीज फाइनेंशियली, फाइनेंस की जबान में चीज एक ही है, दोनों को निकालने का अलग अलग तरीका है। अगर आप बिजनेसमैन खुद हैं तो आप उसको ये जो सामने फार्मूला लिखा हुआ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उसको इस तरह फॉलो करेंगे, और अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो आप उसको इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ओके सर। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? ये मैंने अपने न्यूमेरिकल दे दिया आपको, इसी तरह का क्वेश्चन है ये। अगर बिजनेसमैन सही जो होगा वो कहेगा जी ठीक है, अगर तो इसका जवाब 6% आ रहा है तो ठीक है, वो कंटिन्यू रखेगा, चलो जी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है तो मैं ये बिजनेस कंटिन्यू रखता हूँ। और अभी टाइम मेरे पास 8-9 मिनट है, इसलिए मैंने कहा चलो और थोड़ी सी डिबेट कर ली जाए। और अगर बिजनेसमैन ये समझता है कि जी मैं 7% से ऊपर नहीं जा सकता अपने बिजनेस में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको चाहिए कि सारा बिजनेस बंद करें और बैंक में जमा करवा दें, तो बैंक आपको 7% भी। सर जी सर तो ये जो बैंक में जमा कराते तो सर ये हराम नहीं है क्या? बेटा आराम की कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर आप खुद काम नहीं करना चाहते तो आपने किसी को पैसे दे दिए हैं बैंक। देखिए ना, मैं अगर खुद काम नहीं कर रहा, आपने कहा भाई को, कहा भाई आप बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, मुझे भी मौका दें और मेरे अपने बिजनेस में मेरे कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं तो बिजनेस सही सही नहीं चला पा रहा। तो भाई कहता है कि जी ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लेके बिजनेस शुरू करता हूँ और जो भी परसेंटेज निकलेगी वो तुम्हारा जो हिस्सा बनेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हम उसको कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप वो कहलाती है, जब आगे थोड़ी सी और डिटेल आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो मैं आपको पार्टनरशिप भी बताऊंगा ये पार्टनरशिप क्या होती है। सर ये पार्टनरशिपिंग जैसा कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसमें लॉस भी होता है सर, फायदा भी होता है?
तो इसके अंदर सर ये है कि फिर अगर वो हराम नहीं होता ना, फिर वो हराम नहीं होता। लेकिन अगर भाई काम ठीक कर रहा है और आप सेटिस्फाई हैं कि जी भाई का जो बिजनेस है उसमें अर्निंग ज्यादा है, तो मैं अपना बिजनेस बंद करके बैंक से भी पैसे निकलवा के भाई को दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप खुद कुछ नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनरशिप, कि आई विल नॉट टेक पार्ट एनी डिसीजन, मैं आपके किसी भी हिस्से में कोई फैसला करने वाला मजाज नहीं हूँगा। बट एज ए इन्वेस्टर मैंने पैसे जमा करवाए हैं भाई के बिजनेस में, तो हम उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। अब क्या वो हराम है? क्योंकि आप तो खुद कुछ नहीं कर रहे, भाई ठीक चला गया तो पैसे मिल गए आपको, भाई ने ठीक ना चलाया वो आपको नजर आ रहा है, वो आपको नजर आ रहा है कि भाई काम कर रहा है और पैसे थोड़े बहुत ज्यादा कमाएगा या कम कमाएगा और मुझे पैसे मिलेंगे। बट बैंक भी काम कर रहा होता है, सर वो फिक्स नहीं दे रहा था। आप इंटरेस्ट रेट बैंक में ना जमा करवाएं, आप बैंक के उन उसको कहते हैं म्यूचुअल फंडिंग, म्यूचुअल फंडिंग में पैसे जमा कराना हलाल है, जिसमें मंथली बेसिस पर आपकी अर्निंग ऊपर और नीचे जा रही होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंडिंग में और आम इंटरेस्ट रेट में फर्क ये है कि इंटरेस्ट रेट में आप फिक्स अमाउंट ले रहे होते हैं, बट म्यूचुअल फंडिंग में आपको अर्निंग जितना बैंक अच्छा काम करेगा उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, अगर बैंक अच्छा काम नहीं करेगा तो आपको भी प्रॉफिट लो मिलेगा, वो हराम नहीं होता। अगर आप फिक्स अमाउंट कहते हैं जी बैंक करे या ना करे मुझे फिक्स, जी जी सर आ रही है। ठीक है। तो अगर आप फिक्स अमाउंट लेना चाहते हैं तो फिर आपको जी जी सर इंटरेस्ट रेट की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर कोई समझता है इंटरेस्ट रेट हराम है, आप ना जाएं, आप किसी भी बैंक को, जितने भी बैंक के ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में, वो आप म्यूचुअल फंडिंग में इन्वेस्ट कर दें, वो आपको मंथली बेसिस पर ईमेल करेंगे, एसएमएस करेंगे, वो डेली आ रही होती है। तो अगर आप किसी वक्त अल्लाह ने मौका दिया तो मुझे भी ये जैसे ईमेल है, मैं अगर आपको अपना, मेरे पास अगर कुछ टाइम हो तो मैं आपको अपना ईमेल खोल के दिखाता हूँ। मैंने म्यूचुअल फंडिंग बैंक अल्फा में, मिजान बैंक में जमा करवाई हुई है, जो कि डेली बेसिस पर मुझे अपनी सर ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है सर इसके अंदर हाँ मतलब पैसे वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि उसमें भी डेली आपको कभी स्टॉक ऊपर जा रहा है कभी करेंसी स्टॉक जो नीचे जा होती रहा है। है। तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जितनी भी है ये 7% से लेकर 11% तक गेम चल रही होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपको अगर ईमेल नजर आ रही है, अल मिजान इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है ईमेल? जी सर यार मिजान के अंदर तो मेरा भी मतलब अकाउंट खुला हुआ है। नहीं, सर मैं ये अकाउंट पूछूं अकाउंट हम कुछ और कोई चीज है, म्यूचुअल फंडिंग अकाउंट अलग खोलना पड़ता है, जहां से आप पैसे डेली बेसिस पर नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ बैंक को देते हैं और कहते हैं जी आप खुद बिजनेस करें, काम करें। सर एक और चीज थी जी वो क्लियर करनी थी सर। अगर हम किसी को पैसे देते हैं और वो हमें रिटर्न करता है मतलब 6 मंथ बाद, तो हमें उस पे पैसे चार्ज करना चाहिए या नहीं? क्योंकि आज के रेट जो है सोने के, पेट्रोल के, वो आज के रेट के हिसाब से, अगर वो 6 महीने बाद देता है तो रेट इंक्रीज हो जाते हैं, अगर वो उसी चीज की हम कोई चीज लेके रख रहे हैं तो इंक्रीज हो इट जाती है। डिपेंड्स कि आप शुरू में अगर कोई एग्रीमेंट कर लें कि जी आज के पेट्रोल के रेट के हिसाब से मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और 6 माह बाद जो पेट्रोल के रेट के पैसे होंगे मैं उस हिसाब से रिटर्न लूंगा, उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन अगर आप कोई एग्रीमेंट नहीं करते और बाद में 6% के हिसाब से उसको कहते हैं कि जी मुझे आप जमा करवाएं या इंटरेस्ट रेट दें 5% इस 6 महीने पर, वो फिर हराम होता है। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज के दरमियान, लोन लेने वाला और लोन देने वाला दोनों गिवन एंड टेकर जो भी हैं, ठीक है जी। इट डिपेंड्स, फिर तो सर ये एक डॉक्यूमेंटेशन तरह से करवाना बहुत जरूरी है। आपने पहले बोल दिया तो मतलब क्या उस महीने मतलब आपने दिए उसके ऊपर अगर आप पैसों के ऊपर पैसे लोगे तो फिर ये सूद है। हाँ जी, तो बात तो वही हुई ना सर, जैसे मैंने किसी को पैसे दिए और आज के जो रेट है और 6 महीने बाद मतलब कि उसके बढ़ गए, देखिए अगर तो वो आपको, अगर उसके ऊपर अगर आपस में लेंगे तो एग्रीमेंट, नहीं नहीं देखिए, अगर आपस में एग्रीमेंट हो जाता है कि आप एक किसी बिजनेस में पैसे लगाएंगे तो जितने पैसे आप कमाएंगे उससे थोड़ा सा बढ़ के मुझे भी आपने देना है। ये अगर स्टेट पर डिपेंड, ये सिर्फ नीयतों की गेम होती है। अगर सही पूछे तो अगर आप कहें नहीं मेरे से पैसे ले लो मैं 5% इंटरेस्ट फिक्स लूंगा, तो फिर वो हराम हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं जी आप बिजनेस में यूज करने जा रहे हैं, बिजनेस मैन कहता है आपको उस पर ट्रस्ट है और वो कहता है कि नहीं जी मैं इस पर बिजनेस करूंगा, मैं इंशाल्लाह 20 से 25% मेरी अर्निंग होगी, तो जितनी भी अर्निंग होगी फाइनेंशियली स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, जो भी होगा मैं आपको तो हिसाब से प्रॉफिट दे दूंगा, वो फिर ठीक है।
क्योंकि आपने बिजनेस में उसकी हेल्प की है एज ए स्लीपिंग पार्टनरशिप बन के। ये सारी बातें सिर्फ स्टेटमेंट पर डिपेंड करती हैं। हलाम वो चीज है जो आप सिंपल कुछ भी ना बात करें, कोई हुक्म ना चलाएं, कोई बात पार्टनरशिप की ना करें, पैसा दे दें और आखिर में कहें जी मुझे इंटरेस्ट दे दो, वो हराम है बस। अब सिर्फ ये, अब इस तरह तो सारी पाकिस्तान क्या सारी दुनिया की बैंकिंग फेल हो जाए कि आपके जी सारे सूद में आ रहे हैं, सऊदी अरब में सारे बैंक बंद हो जाए क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्री है, वो तो नहीं हराम वाली बात करेंगे ना। लेकिन सऊदी अरब भी आपको हर काम के काम शुरू करने डॉक्यूमेंट करवा लेता है, लिखवा लेता है ईच एंड एवरीथिंग कि जी मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, आप यहाँ पर जितने पैसे जमा करवा रहे हैं ऊपर नीचे हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, नुकसान हो गया तो बंदा कहते हैं ठीक है जी नुकसान हो गया तो हम भी खुद जिम्मेदार होंगे। वो चीज हलाल कहलाती है ऑटोमेटिकली, आपकी नीयत ठीक थी ना बस। थैंक यू सर। अटेंडेंस लगा दे सारे, मैंने कॉपी करने लगा हूं मैं। सर लगा दिए। बस ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जिसने नहीं लगाई फिर वो एब्सेंट हो जाना है बाद में कल की तरह कि जी मैं प्रेजेंट था तो मैं फलां था। लगाए लगाए, शाबाश, जल्दी करें।